another is the objective function, third one is the constraint, and fourth one is the formulation of MPP. So here four steps are required to solve such type of questions here. So for that one, we have to proceed to the this question, question number 8. What the question tells us here? Question is very simple here. If John drives a car at a speed of 60 km per hour, he has to spend rupees 5 per kilometer on petrol. If he drives at a faster speed of 90 km per hour, the cost of petrol increases to rupees 8 per kilometer. He has rupees 600 to spend on petrol and wishes to travel the maximum distance within an hour. Formulate the above LPP as problem as a LPP. So very simple question asked here. Again, you have to write in four steps are there. In which first step is a decision variable. This is पहली step है decision variable. तो decision variable कैसे डिसाइड करेंगे? ये थोड़ा अलग टाइप का है. क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9. So listen carefully here. How to solve that one? So first of all, John drives at two different speeds. One is a 60 km per hour, and another speed is a 90 km per hour. So we have to declare here the two variables as John drives two different speeds. One is a 60 km per hour and another is a 90 km per hour. So we have to declare these two speeds as the two variables. Means how to write this one is a very simple one. How to write that one? Let लिखते हैं अपन यहाँ पे let John travel x kilometer distance at a speed of कौन सी स्पीड से at a speed of 60 km per hour. Then and y kilometer distance at a speed of 90 km per hour. Okay, so we have to declare now we have declared the two variables here. John travels x kilometer distance at a speed of 60 km per hour. 60 किलोमीटर प्रति घंटे के इससे x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा. फॉर एग्जांपल अपन ने 60 किलोमीटर पर आवर के लिए x किलोमीटर मतलब वेरिएबल x डिक्लेयर. सिमिलरली y किलोमीटर डिस्टेंस इज अ कवर एट अ डिस्टेंस ऑफ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. तो दो वेरिएबल डिक्लेयर करें यहाँ पर. एक 60 स्पीड से x वेरिएबल एंड 90 स्पीड से y वेरिएबल इज देयर. सो वी हैव डिक्लेयर्ड हियर टू वेरिएबल and decision variable. Okay, next one is the objective function, and then this one as it is distance x kilometer distance, y kilometer distance. Then next step is the distance is always a positive quantity. So this one, then x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 is there. Now next one, decision variable के बाद अपना अगला टारगेट रहता objective function. Okay, so what is mean by objective function? अब यहाँ पे objective function क्या है? अब यहाँ पे पैसे का तो सवाल नहीं है ना. स्पेंड है रुपीज 5 किलोमीटर. पैसा तो मिला नहीं उसको, स्पेंड हो बल्कि खर्चा हो गया उसके. तो इस कारण से ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? इसका डिस्टेंस कवर करना. जहां पे उसको जाने का है वहां पे डिस्टेंस कवर करके जाने का. तो अपन क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन नथिंग बट लेट z बी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय जॉन. लेट z बी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय जॉन ने टोटल डिस्टेंस कवर करे वाला है. इसलिए z इज इक्वल टू, देयरफॉर z इज इक्वल टू x प्लस y इज देयर, है ना. उसका 60 किलोमीटर पर आवर से करे वाला डिस्टेंस और 90 किलोमीटर पर आवर से करे वाला डिस्टेंस. तो ये इसका क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय जॉन. तो देयरफॉर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब क्या है? इसको एक जगह से दूसरी जगह से जाने का, बीच में वो सिर्फ स्पीड चेंज कर रहा. एक जगह 60 किलोमीटर पर आवर तो थोड़ा फास्ट होकर 90 किलोमीटर पर आवर इज देयर. So here objective function of John is nothing but let z be the total distance covered by John, and that is nothing but z is equal to 60 km speed per hour plus 90 km speed per hour. ये दोनों स्पीड से वो कवर करा डिस्टेंस. Okay, it is the objective function. Now third one is the important is the constraint here. How to mention how to obtain the constraint here. Very simple. Constraints are there. तो कंस्ट्रेंट अब यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे इक्वेशन में ये थोड़ा समझने का था.
क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में देखो अभी 8 में कैसे करें, पहले सबसे पहले वी हैव टू डिक्लेयर द टू वेरिएबल डिसीजन वेरिएबल. Let John travel X kilometer distance at a speed of 60 km per hour because there are two different types of speed are given to us. One is the 60 km per hour and another is the 90 km per hour. Two different kinds of speeds are given to us. So we have to declare it is as a two variables. So first we declare 60 km के लिए x variable declare करें और 90 km per hour के लिए y variable declare. Then afterward objective function मतलब क्या कि एक्चुअल जॉन ने डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा. एक तो उसने 60 स्पीड से x किलोमीटर करा और 90 स्पीड से y किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस जो है इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन. इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है जानूंगा. जॉन का ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है कि ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने का. अब वो दूसरे प्लेस में जाने के लिए स्पीड चेंज कर रहा है. पहले 60 किलोमीटर थी, बाद में उसने कितने थोड़ा फास्ट हो कितने करा 90 किलोमीटर. मगर उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ जॉन? ही हैज टू ट्रैवल the distance or total distance that is nothing but x is equal to x plus y, that is equal to x plus y. उसका टोटल उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने का और दोनों प्लेस के बीच में जाते समय वो सिर्फ स्पीड चेंज कर रहा है. पहले 60 किलोमीटर का, फिर बाद में 90 किलोमीटर की स्पीड चेंज हो रही, बाकी तो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है. तो उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो ही है. he has to go one place to the another place only changing the speed. So total distance is nothing but x plus y, 60 km per hour plus 90 km per hour. Okay. Now we proceed to the next one, constraint का part. Constraints are very simple one. अब constraint में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो टेबल नहीं कर सकते. अभी तक के क्वेश्चन सातों क्वेश्चन में अपन टेबल करे थे, टेबल से अपने को बहुत इजी हो गया था. मगर यहाँ पे अभी टेबल नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन अलग टाइप का है. ओके. सो CNO कंस्ट्रेंट के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये दो और साफ कर देंगे. तो अपन कंस्ट्रेंट ऊपर लिखेंगे तो और फॉर्म में आएगा. कहता कोई प्रॉब्लम कोई नहीं. डिसीजन वेरिएबल डिक्लेयर करें अपन ने, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया और आप कंस्ट्रेंट तैयार करें अपन. तो कंस्ट्रेंट के लिए अपने को इतना पूरा लगेगा, इसलिए अपन इसको थोड़ा वो कर देंगे. ठीक है. CNO कंस्ट्रेंट्स. सो व्हाट आर द कंस्ट्रेंट हियर? कंस्ट्रेंट्स आर वेरी सिंपल हियर. सो कंस्ट्रेंट्स, third bit is a constraint of network. Constraints है ना. कंस्ट्रेंट इंपॉर्टेंट है. चौथी स्टेप तो क्या रही जाती है, फॉर्मुलेशन ऑफ एमपीपी. फॉर्मुलेशन में क्या जो लिखा है उसके फॉर्मूले में मेंशन करने का. ओके. तो कंस्ट्रेंट में हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट he has to spend rupees 5 kilometer per he has to spend rupees 5 per kilometer on petrol, and if he drives at a speed of 90 km, the cost of petrol increases to rupees 8 km per hour, and he has rupees 600 to spend on petrol. चलो लग जाओ अपने काम पे. अब क्या है देखो यहाँ पे, he has to spend rupees 5 per kilometer on petrol. अगर से पर किलोमीटर और पेट्रोल 60 किलोमीटर से स्पीड से गया, if John drives 60 किलोमीटर पर आवर से, तो उसको कितना पैसा खर्चा हो रहा पेट्रोल पे? ₹5 पर किलोमीटर ऑन पेट्रोल. ऐसा अगर से हमने 60 किलोमीटर से x डिस्टेंस कवर करा तो कितना कवर होगा? 5x. कितना रुपए जाएगा उसका? 5x रुपए जाएगा. उसके बाद 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पेट्रोल इंक्रीज हो रहा, 8 रुपए पर किलोमीटर है. ऐसा अगर से उसने 90 किलोमीटर से y डिस्टेंस कवर करा तो कितना खर्चा होगा? 8y दे. तो टोटल डिस्टेंस जो है, और उसके पास पैसे कितने हैं पेट्रोल पे खर्चा करने के वास्ते? 600. तो एकदम सिंपल हो गया ना काम. देखो अब इसको हम लिखेंगे अच्छे से. क्या लिखेंगे देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखेंगे अपन. क्वेश्चन ऐसा है कि he has to spend, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन. जॉन और he has to spend he has to spend rupees 5 per kilometer, or he has to spend rupees 5 per kilometer on petrol at a speed of, कितने स्पीड से? at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर के साथ. देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इनइक्वालिटी कैसे तैयार होगी? CNO थोड़ा क्वेश्चन अलग टाइप का है, टेबल नहीं कर सकते यहाँ पे. तो कैसी पहली कंस्ट्रेंट, he has to spend ₹5 per kilometer on petrol at a speed of 60 किलोमीटर. मतलब अगर सिर्फ 60 किलोमीटर स्पीड से जाता है पर आवर से, तो उसको कितना खर्च आएगा पेट्रोल पे? 5 रुपये पर किलोमीटर खर्च आएगा. तो ऐसा अगर से उसमें x किलोमीटर गया तो कितना खर्च आएगा?
Now, if he is moving x किलोमीटर डिस्टेंस at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर, तो कितना खर्चा आ जाएगा आपको 5x का, ठीक है। उसी प्रकार से therefore if he covers x kilometer distance at a speed of 60 kilometer per hour. If he covers x kilometer distance at a speed of 60 kilometer per hour, comma, then he has spent how much rupees? He has spent rupees 5x. वर्ड में लिखे थे मैंने, एक तो सिंगल लाइन में लिख सकते हैं, मगर अच्छा समझने के लिए इसको अपन ने पूरा थ्योरी में लिखे। कैसे लिखे इसको कि उसके पास उसको क्या आ रहा 5 रुपए खर्चा आ रहा पर किलोमीटर, कौन सी स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर से। तो समझो अगर से उसने x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा कौन सी स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर से, तो उसको कितना खर्चा आएगा 5x का, पर किलोमीटर पे 5 रुपए का खर्चा। तो ऐसा x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा तो कितने का आएगा 5x का। इसको अगर हम बोर्ड में लिखेंगे ये है 5x का, ठीक है ये, और यहाँ पे कितना खर्चा आ रहा 5 का, बराबर है। अब बोलो अब ये हो गया 5 किलोमीटर खर्चा उसको 60 की स्पीड से आ रहा, अब 90 की स्पीड से कितना आ रहा है उसको 8 रुपए। स्पीड बढ़ गई तो पेट्रोल भी ज्यादा लगता है उसको, इतना मालूम है सबको। तो also he has to spend rupees how much 8 पर किलोमीटर ऑन पेट्रोल। पेट्रोल पे कितना रुपए खर्चा कर रहा हूं 8, कितनी स्पीड से एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब अगर से 90 किलोमीटर की स्पीड से अगर से गाड़ी भगाता है तो उसको कितना रुपया पेट्रोल मिल जाएगा 8 रुपए पर किलोमीटर जाएगा। और अगर से 90 किलोमीटर से उसने वाई डिस्टेंस कवर करा तो पर किलोमीटर पे 8 रुपए खर्चा हो रहा, और वाई किलोमीटर अगर से कवर करा तो कितना 8y। तो therefore if he covers y किलोमीटर डिस्टेंस, कितना भी y किलोमीटर डिस्टेंस कितनी स्पीड से एट ए स्पीड ऑफ सेम कितनी 90 किलोमीटर पर आवर से, तो कॉमा देन कितना रुपया खर्चा हुआ उसका, देन ही हैज स्पेंट हाउ मच रुपीस 8y इज देयर। देखो यहां तक कोई तकलीफ, यहां तो कोई प्रॉब्लम, एकदम सिंपल क्वेश्चन था कि जॉन के पास दो प्रकार के जॉन के पास जो कंस्ट्रेंट में कैसा है कि उसका पैसा खर्चा कितना हो रहा, अगर से वो 60 किलोमीटर स्पीड से भागता है 60 किलोमीटर पर आवर से, तो उसको पर किलोमीटर 5 रुपए खर्चा होंगे, स्पीड मींस खर्चा होना है ना, 5 किलोमीटर का 5 रुपए पर किलोमीटर खर्चा होगा। उसी तरीके से अगर से उसने x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा कितनी स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर से, तो कितना रुपए लगेंगे उसको 5x। सेम इज देयर also he has to spend rupees 8 per kilometer on petrol at a speed of 90 km per hour। 90 की स्पीड से जाता है तो कितना रुपए लगेगा उसको 8 रुपए पर किलोमीटर खर्च आएगा, 8 रुपए पर किलोमीटर। तो therefore if अगर से उस तरीके से उसने y किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा तो उसको कितना 90 किलोमीटर पर आवर से तो कितना खर्च आएगा, he has spent rupees 8y। अब उसके आगे कंडीशन देखो, कंडीशन ये है कि he has rupees 600 to spend on petrol, मतलब उसके पास ज्यादा से ज्यादा 600 रुपए है पेट्रोल पे खर्चा करने के वास्ते। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं यहाँ पे ऐसे लिखेंगे अपन what we can write here, since he has rupees 600, since he has rupees 600 to spend on petrol, तो इसका मतलब क्या है, उसके पास खाली 600 रुपए है पेट्रोल पे खर्चा करने के लिए। इससे इनइक्वालिटी कैसे तैयार होगी, देयरफॉर इनइक्वालिटी बिकम कितना x किलोमीटर डिस्टेंस 60 की रफ्तार से मतलब कितना 5x प्लस 90 की मतलब कितना 8y, और ये दोनों क्या है लेस देन इक्वल टू कितना 600। वो कितना भी चाहे डिस्टेंस कवर करे 60 किलोमीटर से या फिर 90 किलोमीटर से, पेट्रोल पे होने वाला खर्चा उसके पास मैक्सिमम अमाउंट कितना है 600। So it is our first inequality here. It is nothing but 5x plus 8y less than equal to how much? That is equal to 600. तो ये inequality पहली inequality समझी क्या? देखो एकदम फिर से एक बार बताता हूँ। Constraint में
जॉन के पास है, he has to spend ₹5 पर किलोमीटर ऑन पेट्रोल। कंडीशन क्या है कि अगर से वो 60 की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो उसको कितना खर्चा आ रहा, ₹5 पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के पीछे। उस तरीके से अगर से वो x किलोमीटर डिस्टेंस यही स्पीड से जाएगा तो कितना रुपये खर्चा होगा उसका, 5x, है ना। पर किलोमीटर ₹5, इसलिए x किलोमीटर अगर से करेंगे तो कितना रुपये आएगा उसका खर्चा, 5x का। उसी तरीके से ₹8 पर किलोमीटर 90 की स्पीड से, अगर से उसने y किलोमीटर 90 की स्पीड से डिस्टेंस कवर करा तो उसका कितना खर्चा आएगा, 8y। मगर कंडीशन क्या है, उसके पास अमाउंट कितना है पेट्रोल पे, 600 ही है, मतलब उसके आगे नहीं जा सकता हो। He has to spend only ₹600 on petrol, पेट्रोल पे सिर्फ वो ₹600 खर्चा कर सकता, मतलब उसके पास रिस्ट्रिक्शंस या बाउंड्री क्या है, मैक्सिमम वो ₹600 खर्चा कर सकता। इसकी वजह से पेट्रोल पे होने वाला, सॉरी 60 की स्पीड से और 90 की स्पीड से होने वाला खर्च, मतलब 5x प्लस 8y इक्वल टू कितना, 600, मतलब वो 600 तक ही पे खर्चा कर सकता। ये हमारी पहली इनइक्वालिटी, 5x प्लस 8y इक्वल टू 600। ये थ्योरी में से बताया, इसको शॉर्ट में भी दे सकते हैं, मगर अपन एकदम सिस्टमेटिकली एकदम जब तक कोई देखेगा तो उसको जब भी समझ आएगा कि एक्चुअली हो रहा क्या। एकदम सिंपल से बताया अपन ने, 60 की स्पीड से ₹5, इसलिए अगर से x किलोमीटर 60 की स्पीड गया तो कितना, 5x का 5x रुपए लगेंगे। 8 की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर से पर किलोमीटर, y किलोमीटर जाएगा तो 8y, मगर उसके पास ₹600 है। इस कारण से दोनों की एडिशन, 60 की स्पीड से होने वाला पेट्रोल पे खर्च और 90 की स्पीड से पेट्रोल पे होने वाला खर्च इक्वल टू 600, क्योंकि उसके पास मैक्सिमम अमाउंट कितना है, सिर्फ 600 इज देयर। नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। ये होगी पहली इनइक्वालिटी। नाउ सेकंड इनइक्वालिटी देखो, सेकंड इनइक्वालिटी भी यहाँ पे तैयार होगी, तो तुम सेकंड इनइक्वालिटी में जरा गौर से देखो। मैं सेकंड इनइक्वालिटी क्या दी वाली, सेकंड इनइक्वालिटी इज नथिंग बट इट इज ऑफ दिस टाइप। देखो उससे सेकंड इनइक्वालिटी में क्या बताया, on petrol and wishes to travel the maximum distance within an hour। उसको जो ये लगता है कि तो उसका जो वन प्लेस से अनदर प्लेस जाने का है, ये जो डिस्टेंस है कितने में कवर होना चाहिए, विदिन एन 1 आवर, 1 घंटे में इतना डिस्टेंस का क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए। मतलब एक तो 60 किलोमीटर स्पीड से भागाएगा और इसको क्या करेगा, 90 किलोमीटर स्पीड से भगाएगा, और उसके लिए टाइम उसको कितना लगता है, ही विशेष टू ट्रैवल द मैक्सिमम डिस्टेंस, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कितने में, विदिन एन 1 आवर। विदिन एन 1 आवर का मतलब 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे से आज चला ये वाला डिस्टेंस क्या करेगा, कवर करेगा, 60 किलोमीटर को 90 किलोमीटर में। तथा हाउ टू प्रिपेयर द कंस्ट्रेंट फॉर दैट वन, इसको हम सिस्टमैटिक करेंगे। सबसे पहले सबको मालूम है फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू, क्या है फार्मूला स्पीड का, टाइम अपॉन डिस्टेंस, बराबर है। स्पीड इज इक्वल टू टाइम अपॉन डिस्टेंस। टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया, टाइम इज इक्वल टू व्हाट इज द फार्मूला फॉर टाइम, बोलो टाइम का फार्मूला क्या है, यस टेल मी द फार्मूला फॉर टाइम। टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सबको मालूम है फार्मूला, राइट है। टाइम का फार्मूला सगळ्यांना माहिती है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। इट इज द फार्मूला फॉर टाइम। नाउ गो टू दैट वन। अब अगर से उसने 60 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो उसको टाइम कितना लगेगा, if we travel 60 किलोमीटर, so what is the time required here, x किलोमीटर डिस्टेंस कितनी की स्पीड से, 60 की स्पीड से, तो x by 60। उसी तरीके से अगर से वो टाइम जो है 90 किलोमीटर से जाता है तो डिस्टेंस कितना कवर करा उसने, y, स्पीड कितनी है, 90 की, मगर उसको मैक्सिमम डिस्टेंस कितने घंटे में कवर करने का है, इट रिक्वायर्स ओनली 1, ही विशेस टू ट्रैवल विदिन 1 आवर। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर John at a speed of 60 किलोमीटर प्लस एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर लेस देन इक्वल टू 1, उसको क्या लगेगा, 1 घंटे के अंदर इसको मैक्सिमम डिस्टेंस क्या करने का है, कवर करने का है। ये टाइम कितना, टाइम रिक्वायर्ड टू जॉन कवर अ डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम रिक्वायर्ड फॉर जॉन टू कवर
to travel a distance of 5 kilometer at a speed of 90 kilometer and he wishes to travel within an 1 hour. तो ये टाइम 60 की स्पीड से, ये टाइम 90 की स्पीड से, दोनों की स्पीड मिला के उसको क्या लगता कि मैं 1 घंटे में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जहां उसको जाने का है वहां पहुंच जाना चाहिए. He wishes to travel the maximum distance within an 1 hour. 1 घंटे के अंदर उसको मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने का है. तो मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे कवर करा उसने? एक तो उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चला है, x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा और 90 किलोमीटर से y डिस्टेंस कवर करा. इसलिए उसको टोटल टाइम कितना है इसका x/60 प्लस y/90 लेस देन इक्वल टू 1. इसको ऐसे भी लिखेंगे डायरेक्ट या फिर और सिस्टमैटिक लिखने का है. तो देखो अभी इसको और सिस्टमैटिक कैसे लिखेंगे आप? ये तो मैंने समझा दिया जनरली, मगर इसको और सिस्टम लिखने का तो कैसा? सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट में टाइम का फॉर्मूला लिख दो. टाइम का फॉर्मूला क्या है सबको मालूम है? टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज देयर, राइट? सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो कैसे लिखेंगे अपन यहाँ पे क्वेश्चन में जाओ पहले. टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे टाइम required to travel x kilometer distance at a speed of 60 kilometer per hour. एक दिन है चलो at a speed of 60 kilometer हम यहाँ at a speed of 60 kilometer per hour is equal to कितना x/60, right? टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल कितना किलोमीटर डिस्टेंस? x किलोमीटर डिस्टेंस. कितने स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर से. क्या फार्मूला का? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. x डिस्टेंस से और स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर. कितना टाइम लगेगा? अगर से वो जॉन क्या है x किलोमीटर डिस्टेंस कितने स्पीड से? 60 किलोमीटर डिस्टेंस से जाता है. नेक्स्ट पॉइंट आल्सो टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल y kilometer distance at a speed of 90 kilometer per hour is equal to what? y upon 60 is there. y किलोमीटर डिस्टेंस अगर से कवर करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? y/60. मगर जॉन को क्या लगता कि उसका मैक्सिमम डिस्टेंस कितने में कवर होना चाहिए? विद इन 1 आवर. तो इनइक्वालिटी ऐसी होगी since he wishes to travel maximum distance within an hour. मतलब आवर मतलब 1 घंटे में. तो therefore what happens here? Therefore here x/60 plus y/60 less than equal to 1. It is our second inequality. समझ में आई? सेकंड इक्वालिटी क्या है कि जॉन को लगता था कि उसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 1 घंटे में कवर होना चाहिए. इससे पहले अपन ने क्या निकाले? टाइम निकाले. द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल x किलोमीटर डिस्टेंस 60 की स्पीड से. तो टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. y किलोमीटर डिस्टेंस जाएगा 90 से, तो टाइम कितना लगेगा? y/60. मगर उसको क्या लगता है कि उसका डिस्टेंस एक विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर मतलब लेस देन इक्वल आएगा, है ना? विद इन एन आवर मतलब लेस देन इक्वल. So what we can say that here? Time required to John travel a distance of x kilometer at a speed of 60 kilometer is nothing but x/60. 60 की स्पीड से जाएगा तो इतना टाइम लगेगा. 90 की स्पीड से जाएगा तो इतना टाइम लगेगा. y/90 is there यहाँ पर. 90 की स्पीड से जाएगा तो y/90 and less than equal to 1 is there. It is the second inequality that we got. Now therefore what is the last step? Formulation of LPP. Formulation of LPP is there. Formulation of LPP का मतलब क्या? फॉर्मूला क्या मिलेगा इसका बोलो? Formulation of LPP बोलो क्या मिलेगा? मैक्सिमम x को तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? z is equal to x plus y. Total distance covered at a speed of 60 km per hour and 90 km per hour. Subject to क्या कंडीशन है इसके पास? एक तो कंडीशन क्या है? टाइम पे कंडीशन है और एक पेट्रोल पे खर्चा है ना? तो टाइम पे पहले पेट्रोल का पहले टाइम पे लिख दीजिए अपन x/60 plus y/90 less than equal to 1 कॉमा
कॉमा दूसरा क्या है, ये टाइम पे होने वाला खर्चा है, और दूसरा पेट्रोल पे कितना खर्चा होगा 5x, लिखेंगे 5x plus 8y less than equal to 5x plus 8y less than equal to 600, और x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. So formulation of PQB is very simple. He has to travel maximum distance, so maximize. Total distance कितना 60 plus 90, that is equal to x plus y. Subject to the constant. Subject to the constant x by 60 plus y by 90 less than equal to 1. मतलब 60 की स्पीड से और 90 की स्पीड से less than equal to 1, और दूसरी constant on petrol 5x plus 8y less than equal to 600, and these are the non-negative restrictions. Tell me now. समझा क्या, सगळ्यांना कळा लगा हा प्रश्न, कारण हा क्वेश्चन थोड़ा वेगळे टाइप का होता. Yes, is there anybody have problem in that one? किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं. Yes. क्वेश्चन समझ लगा सगळ्यांना? Just tell me. क्वेश्चन कळा लगा? हेलो, क्वेश्चन कळाला का सगळ्यांना? हो सर. हा, मग पुढे जायचं ना? पुढे जायचं की नाही? हो सर. एकदम व्यवस्थित. हो सर. असा टाइपचे हे क्वेश्चन सॉल्व करायचं आहे तुम्हाला. व्हेरी सिंपल वन. तर एकदा त्याची ब्रीफिंग करू आपण, थोडक्यात सांगू आपण याच्यामध्ये की आपण काय काय सांगितलं. जॉन हा पहिल्यांदा डिसिजन व्हेरिएबल मध्ये सांगितलं की जॉन हा दोन स्पीडने जातो, 60 किलोमीटर पर आवर आणि 90 किलोमीटर पर आवर. दोन स्पीडने जात असल्यामुळे दो स्पीड से जाता है, इसके अपन इसको दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे. 60 किलोमीटर की स्पीड से ये लिए अपन x वेरिएबल, और 90 किलोमीटर की स्पीड के लिए अपन y किलोमीटर डिस्टेंस, मतलब अपन एक वेरिएबल डिक्लेयर. So then x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, डिसीजन वेरिएबल. ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने का है, मतलब टोटल डिस्टेंस. तो लेट्स गेट टू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय जॉन. तो दैट इज इक्वल टू कितना 60 की स्पीड से x किलोमीटर और 90 की स्पीड से y किलोमीटर, मतलब z इज इक्वल टू कितना x प्लस y, व्हिच इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज टू बी मैक्सिमाइज्ड. ये हो गया. नाउ वी प्रोसीड टू द कंस्ट्रेंट पार्ट ऑफ दैट वन. तो कंस्ट्रेंट में दो पार्ट, अब इसको तुम आगे पीछे लिखेंगे तो भी चलेगा. अब तुमने मैंने पहले टाइम ले लिया. ओके, तो ये पहली कंस्ट्रेंट, तो कंस्ट्रेंट ये पहली लिखे गया, ये पहली लिखे गया, तो बोथ आर द सेम वन. समझो पहली कंस्ट्रेंट अपने बोर्ड पे कंस्ट्रेंट, सबसे पहले फार्मूला टाइम का, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब देखो, अगर से जॉन 60 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस कितना है x किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा x by 60. अगर से जॉन 90 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर करा y, तो फार्मूला क्या हो गया y बाय टाइम का फार्मूला क्या हो गया, कितना टाइम लगेगा y बाय 90. मगर उसको वो प्लेस पे कितने घंटे में जाने का, विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर. इसकी इक्वालिटी क्या होगी, 60 की स्पीड से x किलोमीटर, 90 की स्पीड से y किलोमीटर, और उसको 1 घंटे के अंदर जाना है, इससे लेस देन इक्वल टू 1. ये पहली इक्वेशन. उसके बाद ये दूसरी पेट्रोल वाली, 5 रुपये पर किलोमीटर 60 की स्पीड से. ऐसा अगर से x किलोमीटर गया तो कितना रुपया लगेगा 5x 60 की स्पीड से. 90 की स्पीड से जाने से 8 किलोमीटर प्रति घंटा. ऐसा अगर से y किलोमीटर डिस्टेंस गया तो कितना लगेगा 8y. और उसके बाद टोटल पेट्रोल पे खर्चा करने के बाद रुपए कितने 600 रुपये. इसके दोनों के एडिशन 5 रुपये 60 की स्पीड से होने वाला खर्चा 5x, देन आफ्टरवर्ड 90 की स्पीड से होने वाला खर्चा 8y लेस देन इक्वल टू टोटल अमाउंट ही हैज टू स्पेंड ऑन पेट्रोल इज नथिंग बट 600. सो हियर 5x plus 8y less than equal to 600, and this one is nothing but it is our non-negative restrictions is that x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. It means that our graph is in the first quadrant. So these are about this question. It takes so many times, lots of time, बहुत टाइम ले लिया इसने. कोई बात नहीं, मगर क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा था. तर तुम्हाला व्हाट्सएप पे सांगितलं होतं की सर तुम्ही द्या, त्यामुळे ते क्वेश्चन घेतला मी. आता क्लास क्वेश्चन घेऊ, म्हणजे मी सगळेच क्वेश्चन घेतले एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9. So we proceed to the question number 9 here. ओके, एकदम सिस्टमॅटिक सांगितलेलं आहे, कोणाला काहीच अडचण नाही, एकदम छान तऱ्हेने सांगितलेलं आहे क्वेश्चन. नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर.
क्वेश्चन इथं म्हणतात द कंपनी मेक्स कॉन्क्रीट ब्रिक्स म्हणजे मराठीत त्याला वीट म्हणतात है ना, मेड अप ऑफ सिमेंट अँड सँड सिमेंट आणि सँडची तयार केली आहे. म्हणजे दोन व्हेरिएबल क्लिअर झाले. ब्रिक तयार करण्यासाठी आपल्याला काय लागेल, सिमेंट अँड सँड. सिमेंट साठी x घेऊ, सँड साठी y घेऊ. सिमेंट सगळ्यांना माहिती आहे, सँड म्हणजे वाळू है ना, दुसरे the weight of a concentrated brick has to be at least 5 kg. हा क्वेश्चन थोड़ा at least मध्ये दिलं, हे सगळ्यांना माहिती आहे. at least means कम से कम और at most means ज्यादा से ज्यादा है ना. at least का अर्थ क्या आ जाएगा, कम से कम मतलब क्या, at least जब आएगा तो ये बात याद रखना है, greater than equal to comes. whenever at least word comes it is greater than equal. at least का मतलब क्या, इक्वल या फिर उससे ज्यादा. कम से कम का मतलब क्या, इक्वल किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त. at least चा अर्थ निघतो. आणि ऍटमॉस अर्थ काय असतो, लेस देन इक्वल, कमी किंवा त्याच्यापेक्षा जास्तीत जास्त. लेस देन इक्वल मतलब बस इसके अंदर एक तो इक्वल या फिर इससे कम. और ये एटमोस्ट का अर्थ है, इट इज द मीनिंग ऑफ एटमोस्ट. एंड व्हेनेवर द वर्ड एटलीस्ट कम, एटलीस्ट मीन्स लेस देन ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त म्हणजे एटलीस्ट. आणि एटमोस्ट म्हणजे काय, इक्वल किंवा त्याच्यापेक्षा कमी. हे वर्ड लक्षात आलं पाहिजे. बघू आता पुढे. मग पुढे काय क्वेश्चन आहे, cement costs rupees 20 per kg, sand costs rupees 6 per kg. Still consideration dictate that a concentrated brick should contain minimum 4 kg of cement and not more than 2 kg of sand. Form the LPP for the cost to be minimum. ये अपने को कम से कम खर्चे में एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स अपने को तैयार करने का है. कम से कम खर्चे में अपने को स्ट्रॉन्ग ब्रिक मतलब ब्रिक तैयार करायचा है. बघू. So how many steps are there? Again 4 steps required. First one is a decision variable. So we write here decision variable here. Decision variable. So declare the variable here. ब्रिक बनाने के लिए कितना क्या क्या लग रहा है इसके लिए, सीमेंट एंड सैंड. तो इसके लिए लिखेंगे अपन क्या लिखेंगे अपन, लेट द कंपनी है ना, ठीक है, लेट द कंपनी यूज x kilogram of cement and लिखेंगे अपन, let the company use x kilogram of cement and y kilogram of sand. तो क्या तैयार करेंगे, to make concrete bricks, to make concrete bricks is there. So therefore x किलोग्राम मतलब अपने सीमेंट के लिए x kg मतलब x वेरिएबल डिक्लेयर करें, और इसके लिए कितना, सैंड के लिए y. ओके, this one. So then what we can say that here, there x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 is there. Second one, objective function. Okay. Decision variable is very clear. What is the decision variable? You have to use the two variables. Let the company use x kilogram of cement. Cement के वास्ते x variable और sand के वास्ते y variable. To make a concrete bricks. Concrete bricks के लिए ये दो variables का अपन use करें. अब उसके बाद इसका objective function. What is the objective function? Here now. Objective function is nothing but थोड़ा ढूंढ के निकालना पड़ेगा इसका objective function. ठीक है, आप देखो, सीमेंट कॉस्ट ₹20 पर केजी एंड सैंड कॉस्ट 6 पर केजी. तो टोटल कितना मिलेगा उसका आपने को, एकदम सिंपल है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एकदम सिंपल है. द कॉस्ट ऑफ सीमेंट पर केजी में कितना कॉस्ट बोला उसने, सीमेंट पे कितना खर्चा आ रहा, ₹20 पर केजी इतना. therefore the cost of cement पर के जगह पे x kg अगर से यूज करें तो कितने का खर्चा आएगा, 20x का. ठीक है, सेम the cost of sand पर केजी, सैंड पे कितना रुपए खर्चा हो रहा, 6. उसी तरीके से अगर से therefore the cost of sand पर के जगह पे y kg तो कितना रुपए खर्चा आएगा, 6y. अब यहाँ पे लिखिए therefore Z be the total cost.
टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी therefore z is equal to 20x plus 6y. z is equal to 20x plus 6y, which is the objective function. Which is the objective function. Which is this is the objective function which is to be minimized. Which is to be minimized is there. एकदम सिंपल. दोन स्टेप कळाले. डेसिमल व्हॅल्यू मध्ये सिमेंट साठी x किलोग्राम एक घेतला आणि सॅन्ड साठी y किलोग्राम सांगितलं. दोन व्हेरिएबल x ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0. ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन सिमेंटचा पर केजी साठी 20 रुपये खर्च येतो. तर असा आपण अगर x केजी यूज करें ब्रिक्स में तो कितना खर्च आएगा 20x. सैंड के वास्ते पर केजी 6 रुपए, तो y केजी के लिए कितना 6y. तो टोटल कॉस्ट, लेट्स गेट टू द टोटल कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट क्या 20x plus 6y सिमेंट प्लस सैंड which is the objective function that's to be minimized. हे का दोन स्टेप झाले. आता काय राहिले त्याचे फक्त एकच स्टेप महत्वाची, कंस्ट्रेंट. फॉर्मूला तो अपने को आराम से आता. तो पहले शुरू कंस्ट्रेंट देखेंगे. व्हाट आर द कंस्ट्रेंट है? वेरी सिंपल वन कंस्ट्रेंट्स. तो कंस्ट्रेंट देखो यहाँ पे एनी कंस्ट्रेंट एक्चुअली नहीं करेगा. फर्स्ट कंस्ट्रेंट इज नथिंग बट तर आता त्यांनी काय सांगितलं स्ट्रेन कंसिडरेशन ये नहीं. हाँ ये नहीं. द रेट ऑफ ए